मैं बताता हूँ कुछ आपके बारे में. मतलब you could have mentioned any other decision which is transactional in nature, but by core when you were talking about your team, इससे पहले भी जब मैं आपसे पूछा ख़राब डिसीजन क्या हुआ, यू अगेन मैंशन अबाउट द टीम कि लोकल ग्राउंड में हमने ये सब इम्प्लीमेंट कराया. जबकि यूजली लोग ना फाउंडर्स या मैं भी जब भी मैं खुद नहीं मैं भी जब लोगों से बात करता हूँ तो आई हेयर अ लॉट ऑफ डिसीजंस व्हिच आर ट्रांजैक्शनल इन नेचर, नॉट people centric, and it also shows the approach that you have to lead the company and run the business. Yeah. I'm always been considered the most calm and the people's person. But that's what I am. I And I think that has also helped It has. run the business. Absolutely. Transaction अगर होता तो इस इंडस्ट्री में Yeah. to fight 30,000 crore rupees industry was very difficult. Yeah. You have to lead with the larger purpose with people, and people should be connected with you is what I feel. अभी आप कुछ बड़ा बना सकते हो, नहीं तो आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे हर एक आदमी बस ये कैलकुलेट करेगा कि मुझे क्या मिला, और फिर जैसे ही वो देखेगा कि उसको उस प्रोपोर्शनेट में नहीं मिला तो वो आपको छोड़ता चला जाएगा. राइट. सो ही विल नॉट वेट टिल द. कैसा चर्न रेट कैसा है आपका कंपनी? वेरी लो. कितना मतलब वेरी लो क्या होता है? वेरी लो मतलब अगर हम बोलें कि सबसे ज़्यादा चर्न रेट तो जहाँ लोअर लेवल ऑफ जहाँ पे हमारे सबसे ज़्यादा लोग हैं इन सैलरी ब्रैकेट्स में वहाँ होना चाहिए, वहाँ सबसे कम है 4 या 5% साल का बस. और ओवरऑल शुड बी अराउंड व्हाट 8-9%, 10%. इज दैट ऑल? यस. आपको मार्केट स्टैंडर्ड्स पता है बाकी जितने कंपनियों के IPOs आए? आई वाज डूइंग अ स्टडी कि इनका सबका इटरेशन रेट कितना है, तो नोबडी वाज लेसर देन 30%. सो आई थिंक BPO में एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा होता है. बाकी जगहों पे हेल्थ केयर मेरे को लगता है कि एक देयर इज़ अ डिफरेंस. लॉट ऑफ पीपल यूज टू टेल मी कि यार ये डिलीवरी वाली कंपनीज के सैलरीज इतनी बढ़ गई, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा. अ लॉट ऑफ पीपल in healthcare, even if they are phlebotomist, they are different than all of these people, right? They need more respect. A lot of people at homes consider them as doctors. Yes. Right? They are a paramedical staff. So you need to lead them by respect than money. आप उनको बोल दो ना कि यार तुमको 500 रुपये और दे देंगे, तुम ये काम भी कर दो, तो they will feel that you have insulted them, right? Because they are particularly qualified for something. And they are not like other people कि आप बोलोगे अच्छा भैया आप एक डिलीवरी की जगह 4 कर दीजिए तो इतना पैसा मिल जाएगा. We never give incentive on number of collections. Never. How does it work? So incentives are always if you go and add and suggest more tests, that is the only incentive. But there is no incentive on doing more samples, running around, doing much faster. आप 10 सैम्पल ले आओगे तो हम इतना कर देंगे, 11 ले आएंगे. Because they feel like कि अच्छा आप हमारे को पैसे से पुश कर रहे हो for certain things, right? That's not their respect, right? So that's guiding people is their respect. कि मैं गया मैंने उनको बताया कि सर कोलेस्ट्रॉल से ये होता है, इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है, आपकी एज में ये भी कराना चाहिए, उन्होंने करा लिया. That is fine, right? Very interesting. So that's how they are always led by respect, and we have given them the most. So they are the most respected people in our entire. While everybody is respected, but they are the most respected. We call them as army. They have names. They are always considered as the front force. हाँ जी. And they're always respected in every event, everywhere they're standing. They are always being considered that, and we've basically made sure our consumers also give them the same respect, and which they get. Yes, that is true. बहुत ज़्यादा गहरी बात है ये. I don't know how to find words to articulate it, but आपने जितना बताया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जब तक घूम रहा होगा then it is always going to be business point of view से भी ना, it is always going to be a linear model. Yeah. जो कि बाकी जितने भी डिलीवरी एजेंट्स हैं वो सब absolutely. Yeah. You'll have to create your differentiator. Otherwise, if it's a give and take, then पैसे बहुत हैं मार्केट में और सैलरी बढ़ा के देने वाले लोग भी बहुत हैं. Correct. Very interesting, sir. Amazon is also getting into the market? Yeah. So by not directly, but they have invested into a company which have been into this space. And particularly this space. वो सिर्फ यही करते हैं. हाँ, वो होम कलेक्शन करते हैं, उनकी लैब्स भी हैं and all, but they are more Bangalore based, expanding now. They basically built the company during COVID times, and now they have invested in that. But for Amazon, this is not the business that they would really rely on so big, because ultimately this is very heavy on the logistics, and then it has a lot of compliances and a lot of other things to manage. So yeah, and in healthcare again, the consumer base is very, very different. A lot of people who used to do pharma, right, or a medicine,
think that they will be able to do very good at diagnostic. That doesn't happens in क्यों? India. रीज़न कि आप कभी केमिस्ट के पास जाके बोलते हो भैया टेस्ट कर दो, नहीं. नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में स्टार्टिंग से ही यही है कि केमिस्ट अलग है, डायग्नोस्टिक अलग है, हॉस्पिटल अलग है, डॉक्टर का क्लिनिक अलग है. ये अभी तक मर्ज और इंटीग्रेट नहीं हुए. सो आई हैव अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीवन, ठीक है. राइट. तो जब कोई दवाई वाली कंपनी मुझे फ़ोन करके बोलती है हम टेस्ट भी बेचते हैं, तो मुझे वो भरोसा नहीं आता. बट एक टेस्ट वाली कंपनी बोलती है हम तो सिर्फ टेस्ट ही करते हैं, तो मुझे भरोसा आता है. वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे को अपोलो पे भरोसा नहीं है. हाँ, सही कह रहे हो आप. हाँ, नहीं है, क्योंकि पता नहीं फॉर सम रीज़न आई हैड टू गेट. मेरी मम्मी के लिए मेरे को टेस्ट कराना था. मैं हेल्थियन से क्यों नहीं कराया मेरे को नहीं पता, बट मैंने बाद में हेल्थियन से ही करवाया था. बट आई कॉल्ड अपोलो. आई थिंक इंस्टेंटली वी हैड टू गेट अ टेस्ट डन. तो आई कॉल्ड देम एंड दे सेड कि 8 घंटे लगेंगे, 9 घंटे लगेंगे. और फिर मेरे को अंदर से ना वो जो आप बता रहे हो सब कॉन्शियस था कि यार ये अपोलो वाले भी करते हैं क्या टेस्ट, सही करते होंगे या नहीं करते होंगे. दैट वाज देयर. कभी ऐसा हुआ है, मैंने एक चीज़ देखी है, आप बोल रहे हो कि मेरा बहुत कन्विक्शन रहा है वट एवर आई एम डूइंग. आई ऑलवेज न्यू. मेरे को कैश क्रच भी हुआ तब भी मुझे पता था मैं ठीक चीज़ कर रहा हूँ.